हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज दिस सेशन इज डेडिकेटेड फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू रिलेटेड टू ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं जो आपको करना पड़ता है क्रॉस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग मटेरियल्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपको हेल्पिंग मटेरियल्स जैसे रोप, बल्ली और फट्टा यानी रोप, वुडन लॉग और वुडन प्लैंक के सहायता से स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करने पड़ते, ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने पड़ते वाइल कैरिंग अ लोड। और इसके लिए ज्यादातर कैंडिडेट्स जहां फंसते हैं वो है रोप नॉट्स पे। रोप्स को कैसे टाई करना है या कौन से नॉट्स यूज करना है ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। तो आज के सेशन में ग्रुप टास्क के रिलेटेड मैं यहाँ पे 10 ऐसे रोप नॉट्स के बारे में बात करूंगी जो हर एक कैंडिडेट को बहुत अच्छे से जानकारी रखना चाहिए और घर में आप प्रैक्टिस करके जाना ताकि एसएसबी में जाके ग्रुप टास्क के टाइम पे आप ये नोट्स का इस्तेमाल कर सको और अपने ग्रुप टास्क को बहुत प्रॉपरली एंड लाइक अ प्रो क्रैक कर सको। तो देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर दीज 10 नोट्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नोट। द फर्स्ट नोट दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इज शीट बेंट एंड डबल शीट बेंट। द शीट बेंट, जिसको हम बेकेट बेंट, वीवर्स नॉट और वीवर्स हिच के नाम से जानते हैं, इज अ बेंट दैट इज अ नॉट दैट बेसिकली जॉइंस टू रोप्स टुगेदर। इस टाइप के नॉट जो होते हैं ये स्लिप नहीं करते जब दो डिसिमिलर मटेरियल या साइज के रोप्स को आप बांधते हो। बट while tying the knot, you have to be sure that the working ends are on the same side or the knot might be unreliable. Now, if you tie a thick and a thin rope together, आपको thin rope यूज करने हैं to form the stationary loop और आप thin rope को working line के हिसाब से यूज कर सकते हो। For greater security, especially with plastic rope, आपको double sheet bend का इस्तेमाल करना पड़ता है by taking an extra coil around the standing loop. This type of knot can be used when you have tied two ropes together and the knot absolutely must not fail. The second type of rope knot that you should know is trucker's hitch. Trucker's hitch एक powerful pulley है with a locking knot. You use this type of knot when you need a locking pulley with a 2-to-1 mechanical advantage, such as hanging a bareback, tying a canoe on a car, and so on. Taut line hitch की तरह ये knot slip नहीं करता है when used with a slippery line. Firstly, आपको एक overhand loop form करना पड़ेगा. Then you have to pull the loop through. You have to make the loop exactly as shown because it won't work if you do it backwards. You have to run the working end of the rope through the loop and then pull hard to form the pulley. You have to secure the pulley to a stationary object like a pole or a branch with a quick release half hitch, or for extra security, 2 or more standard half hitches. The third rope knot that we are going to see here now is 2 half hitches. आप हाफ हिचेस का यूज कर सकते हैं टू टाई अ रोप टू अ ट्री, रिंग और डॉग। अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है तो आप एक सेकंड टर्न लगा सकते हैं अराउंड द ट्री और जस्ट एड मोर हाफ हिचेस। The fourth rope knot that we are going to see here is bowline. This type of knot is popular among mountaineers, climbers, sailors and others. Bowline का यूज आप कर सकते हैं when you want a non-slip loop at the end of a line. ये knot slip नहीं करेगा regardless of the load applied. You have to start by forming a loop or rabbit hole. The rabbit or the working end of the rope goes up through the hole, around the tree, then back down the hole. This knot will slip as it tightens, so allow a long working end. The next rope knot is taut line hitch. Adjustable loop को एक प्लेस में रखने के लिए, जगह रखने के लिए आपको taut line hitch का इस्तेमाल करना होता है. This is the knot to use for staking out the guy lines of your tent. The next hitch is Prusik hitch. A Prusik hitch can slide up or down a stationary rope, but it will hold steadfast when weight is applied. ये बहुत सारे सेल्फ रेस्क्यू सिचुएशंस में यूज किया जाता है। बेसिकली माउंटेनियर्स इस प्रूसिक हिच को यूज करते हैं फॉर फुट होल्स टू हेल्प देम क्लाइंब अ वर्टिकल रोप। कैंपर्स इसको यूज करते हैं फॉर रिगिंग रेन फ्लाइज और रेस्क्यूइंग रॉक पिंड कैनूज इन अ रिवर। फर्स्टली आपको एक शीट बेंट या डबल फिशरमैन्स नॉट को यूज करना पड़ेगा टू मेक अ लूप फ्रॉम अ लेंथ ऑफ पैराशूट कॉर्ड और रोप। उसके बाद आपको मेन लाइन को रैप करते हुए इस लूप को 3 टाइम loop around करना पड़ेगा. The Prusik hitch will slide easily along the rope, but it will jam when a load, horizontal or vertical, is applied. The next rope knot is clove hitch. Clove hitch एक versatile knot है जो कि सबसे important knots में से माना जाता है
और इसको कॉमनली डबल हिच भी कहते हैं। ये स्काउटिंग एक्टिविटीज जैसे स्टार्ट के सर्विंग में या फिनिश के सर्विंग्स में बहुत सारा टाइम यूज किया जाता है। स्क्वायर नॉट दो रोप को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। Generally, it works best with two ropes of the same diameter and should not be used to hold a heavy load. इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इससे हेवी लोड आप नहीं उठा सकते। नेक्स्ट इज टिम्बर हिच। टिम्बर हिच एक ऐसा नॉट है जो कि एक सिंगल लेंथ ऑफ रोप को किसी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करने में यूज करते हैं। This type of knot is often used to drag a log across the ground or to start a diagonal lashing. The last one is double fisherman's knot. ये डबल फिशरमैन्स नॉट को ग्रेप वाइन नॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा बेंड या नॉट है जो एक ही रोप के टू लेंथ्स को या टू लेंथ के रोप को ज्वाइन करता है। ये नॉट हम यूज करते हैं टू टाई टुगेदर द एंड्स ऑफ वन रोप फॉर्मिंग अ लूप। द लूप ऑफ रोप कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस इंक्लूडिंग द प्रूसिक हिच। तो ये था कुछ 10 रोप नॉट्स जो आपको अपने एसएसबी ग्रुप टास्क में यूज करना पड़ सकता है व्हेन यू आर into ground activities like snake race, or you are in any kind of individual obstacles, or you are in final group task और पीजीटी और एचजीटी। तो ये रोप नॉट्स को अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाते हैं एसएसबी के ग्राउंड में जाके ग्रुप टास्क के टाइम पे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है टू यूज डिफरेंट रोप नॉट्स एंड टू अचीव योर टारगेट्स इन अ मिनिमल टाइम। तो ये रोप नॉट्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिए and you will surely able to master these knots, which will be a big help for you in your SSB interview, specifically during the group task. तो ये था आज के सेशन जहां पे मैंने आपके साथ रोप नॉट्स डिस्कस किए जो आपके ग्रुप टास्क में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा in your upcoming SSB. If you want to prepare for your SSB interview like this, please make sure that you are enrolling into SSB interview online course, which is the best online course in the entire market. इसके थ्रू आपको हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। If you're preparing for any other written defense exam, उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। So download our app today and use the code warrior10 to get a 10% off on the courses. That is it from my side. I hope to see you very soon with something more helpful, informative, and useful for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।